So the foremost chapter, the chapter remains physiography and drainage. We are across towards the lead of the geography syllabus. That is chapter number two. Tak to theek tha. It was just a general information. Chapter number one is not so important, also not necessary. But chapter number three, yes, it carries a weightage, and there's actual बोल सकता हूँ एक तरफ से कि आपकी जो 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई वो यहाँ से शुरू होती है. तो प्लीज kindly pay attention. So let's study about the physiography and drainage. Any idea? Anyone has got any idea what is physiography? What do you mean by physiography? Have your school started with this chapter or have they completed it? No, sir. Not yet. Okay. So any idea anyone has gone among you regarding what is physiography? No? Praneet, any idea? Hello? Rishika, any idea what is physiography? I don't think so. Okay, not an issue. Divisha, any idea? No, sir. No. Okay, fine. Uh, okay. Okay, let me ask few more questions to you people. Darshan. Hello. Yes, sir. Hi, Darshan. Where do you stay? Yes, sir. Where do you stay? Bandu. You stay in Bandu. Okay, fine. So, what can you see across, like across your home, across your house? क्या क्या देखते हो आजू बाजू? आपको क्या क्या दिखाई देता है? Buildings. यहाँ सिटी साइड में तो बिल्डिंग्स तो नेचुरल है. Nothing else. Can't you see a mountain somewhere or the other nearby? Okay, among you all, how many can like view mountain from your home or nearby area? Mountain or Sir, lake? I Okay, where do you stay, Yutika? Shastri Nagar. Shastri Nagar. Okay, Shastri Nagar is in Mulund colony, right? If I'm not wrong. Sir. Okay, so there is a nearby mountain towards you, Yogi Hills, I guess, and there are no lakes across there. Okay, fine. Okay, people from Pavi, anyone from Pavi? show me. Yeah, Rishika. So you can view the both. You can view the mountain. You can view the lake, right? Yes, sir. Okay, great. So Not this lake, is but mountain, I guess. okay. Have you been across to Pavi Lake sometime or the other? Rishika, have you been there? Like lake के पास गए हो कभी? गणपति विसर्जन या और something like. Yes, sir. तो वहाँ से Powai माउंटेन Lake. दिखते हैं ना? पवई लेक के यहाँ से माउंटेन दिखते हैं ना? सामने वाला Yes, sir. नेशनल पार्क वाला. हाँ, yeah, right. So yes, this is the structure of land. जो जमीन की बनावट है, तो जैसे माउंटेन्स है, वैलीज है, रिवर्स है, देन लेक्स है, these all are counted into physiography. कहीं पे प्लेन एरिया है, एक लेवल्ड एरिया, कहीं पे हमने लेवल किया है माउंटेन्स को काट काट के, कहीं पे माउंटेन्स पे लेवल एरिया तो होता नहीं, प्लेन एरिया तो होता नहीं माउंटेन्स पे. माउंटेन्स पे हमको क्या मिलता है? तो ऊबड़ खाबड़ जमीन मिलती है ना. It's a like up and downs, many up and downs in the mountainous area. So these are nothing but called as physiography. The structure of the land is called as physiography. And what about drainage? Drainage is not your gutter line, not the sewerage lane.
Drainage basically यहाँ it So your means voice is breaking. my voice is breaking. Others have the same complaint. My voice is breaking. No, sir. No, so that means you got a network issue. That is much common, right? Okay, I'll just come across the window. So I don't have any net issues, and I can clearly view the mountain from my window. A clear cut picture of a mountain. I stay in Thane, which is in like near about to Waghly State. We can say that much near to the Mulund colony. Uh, if you're from Mulund colony, so you might be knowing the Vaishali Nagar area. It's on there. So the mountain which was described a few minutes ago by the Mulund colony resident, Shastri Nagar resident, is the same mountain I can view here very clearly, very sharply, and like it's much closer to me. Okay, fine. So I got a good view of mountain from my window. Okay, fine. So drainage, I was talking about drainage. Drainage is nothing but the rivers, not your gutter line, not your sewage line. It's drainage means rivers. So let's start with the physiography. As you can see that there are many uh, land structures as like different colors in the map. You can see. I'll just take a back step in this one. Okay. So if you can see that the here are here. This this is from your textbook. You can refer your textbook later on, not right now. So here are the indicators, the index of the parameters, what the colors indicate, what is the height of that particular area from the this index you can make out in the map. For example, this is a greenish color, which is a coastal plain area, which is less than 100 meters of something like 150 or 100 meters or 50 meters might be from the sea level. Then across we can come with the light bluish color, which is somewhere you can see over here. I just point out here in this area. Okay. Then we come across the orange, no, yellow color. Yellow color indicates in this area. So what does the colors indicate? The green is much lower level from the light green part. The light green is higher from the dark green part. The yellow color shaded area is much higher level than the green area. The orange color part, I'm talking about this one, this, okay. This area is much higher than the yellowish one. So the alag jo color hai, that is indicated by the different height from the sea level, above the sea level. As you can see that there is a gray color in this at the top, right at the top here. It has a gray color. So gray color मैं अगर map में ढूंढने जाऊं, I can just zoom it out. You can see over here. Just a moment. Over here, it's a gray color. That means that is the most highest point. Yes, it is. If you can see in the index number, index in your textbook, it shows that 8,000 meters. The area, which is this, is the Karakoram range, and there's a mountain. If you can see in your map in your textbook, you can have the mountain named as K2, which has a height of 8,848 meters from the sea level. I can say that yes, it is the second highest point in the world, just next to the Mount Everest. Mount Everest is not in India. इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट यही है, K2 है, which is 8,848 meters. This Everest lies in Nepal. That is not a part of India. ठीक है? So now talking about these geographical structures, कि कौन सी जमीन कितने ऊपर है, you can see this. I just divide India into some part. जैसे for example, 5 major part में अगर divide कर दो Himalayas, you can see this Himalayas. Okay, now talking about the Himalayas, this is called as Western Himalayas. This is called as Central Himalayas. कुछ हिस्सा नेपाल में है, कुछ हिस्सा यहाँ पे भूटान में है, which is not our part. ये नेपाल वाला पार्ट हम काउंट नहीं कर रहे और ये भूटान वाला काउंट नहीं कर रहे. तो ये जो छोटा सा हिस्सा है देखो सिक्किम का, ये सिक्किम है, ये छोटा सा, ठीक है. यानी यहाँ का कुछ हिस्सा अपना सेंट्रल पार्ट में आता है. ये जो है वो ईस्टर्न हिमालयंस है, ठीक है. तो कैसे वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालयंस में डिवाइड होता है ये.
Then it comes from the North Indian Plain. Now, starting from west to the east, the North Indian Plain. North Indian Plain की आपको अगर कहानी बताऊं तो how did it formed? अभी प्लेन एरिया क्या होता है? What is plain area? Plain is nothing but like a flat area जिसको आप नॉर्मली आप जानते हो, तो फ्लैट एरिया को हम प्लेन एरिया कहते हैं. बट ये फ्लैट एरिया के पीछे एक कहानी है. I can show you in the Google. So just bear me a moment. Okay, मैं आपको ना मोमेंट दिखाना हूँ चेक. I'm just writing out here Pangaea. ठीक है. What do you mean Pangaea is? Here is a Pangaea. इस मोमेंट यहाँ पे मैं आपको अलग अलग में बता देता हूँ. ये वाला फोटो रखो. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस फोटो, जस्ट एक सेकंड मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ बिकॉज आई नीड इट लेटर ऑन. दूसरे बच्चों को सिखाने के लिए. इट इज डाउनलोडेड नाउ. ठीक है. So I just open it in my gallery so that you can have a view and I can zoom it as well. आपको एक एक सिनेरियोस में मैं समझा पाऊंगा उस चीज को. Now this part what you're viewing on your screen is about 225 millions of year ago when the entire world which you see in the map today is this one. ये आप देखते हो, ये वाला नीचे जो है आपको दिख रहा है, जो स्पिरिट नहीं उसके नीचे वाला जहाँ पे एंटार्क्टिका आपको दिख रहा है. प्रेजेंट डेज मिला आपको दिखा. ये आपका करंट वर्ल्ड है आज के ज़माने में. I'm talking about 225 million years ago when the entire land mass was a single land mass which is known as Pangaea. एक पूरी एक जमीन थी. एक काम करना, आपका पुराना कोई टेक्स्ट बुक होगा ना जिसमें वर्ल्ड मैप होगा, 9th की टेक्स्ट बुक उठाओ, शायद उसमें है वर्ल्ड मैप. वो अर्थक्वेक्स के बारे में जहाँ पे बताया हुआ है, वी हैव अ वर्ल्ड मैप ओवर देयर. काम करना ना बेटा, उसमें ना हर एक कॉन्टिनेंट को कट कर लेना. वी हैव गॉट 7 कॉन्टिनेंट्स. कट करना उनको सीजर से, संभाल के, हाथ मत कट लेना. एंड इफ यू कैन जॉइन इट मेकिंग दिस स्ट्रक्चर, द Pangaea स्ट्रक्चर, इट विल बी मेड अगेन. इट इज लाइक अ पजल. आप पजल्स खेलते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, नॉट डोमिनो पजल है, यहाँ पे हम कटआउट्स को अलग अलग शेप में होते हैं, उनको कट करके एक पिक्चर बनाते हैं. ये वर्ल्ड मैप इज द सेम वर्ल्ड. नाउ लेटर ऑन, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ सीज हैं, मतलब जैसे ओशन के अंदर है ये Pangaea स्ट्रक्चर है. Now later on that because of oceanic current there was a division between this land structure. Continuous जो currents आ रहे थे, तो दो हिस्सा बन गया. एक बन गया गोंडवाना लैंड और दूसरा बन गया फ्लोरेशिया. Now this is again 200 million year ago. मैं पहले बात कर रहा था 225 million year ago. Now जब जुरासिक पीरियड आया तो ये हो गया स्ट्रक्चर. आई गेस यू कैन आइडेंटिफाई एरियाज क्या क्या है, राइट ना. ओके. तो यहाँ से आप देख रहे हो एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकल रहा है एक ट्रायंगुलर शेप में. जस्ट जहाँ पे गोंडवाना लिखा है ना, उसके नीचे थोड़ा सा एक गन के जैसा दिख रहा है. वो थोड़ा सा ये डायनासोर जैसा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पीठ पे है ना. या दैट इज इंडिया. अच्छा देखो यहाँ पे इंडिया अलग से भाग गया है. ओके. जुरासिक पार्ट में देन इट कम्स अक्रॉस दिस पार्ट. अब ये देखो इंडिया फ्लोट होके एकदम से अलग चला गया, और ये जो छोटा सा नेक्स्ट गया ना एकदम दूर, कहाँ पे बात करूँ मैं, ये सिटेरिस पीरियड जो 65 मिलियन ईयर अगो है. ये जो छोटा सा हिस्सा अलग हो रहा है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो सेंटर में है, दैट इज इंडिया. और ये जो एकदम नीचे है छोटा सा हिस्सा, वो ऑस्ट्रेलिया है आपका. एंड दिस इज द करंट वर्ल्ड. अच्छा आपको एक बता दूं, देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर. साउथ अफ्रीका में कॉन्टिनेंट में वापस से ये हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. इट माइट बी लाइक कुछ ईयर्स में आपको साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी दो हिस्से दिखेंगे आपको. तो दिस इज व्हाट. उसी तरह जब ये इंडिया का जो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आपको जॉइंट करके वो दिखा ना, ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल वाला है, इससे ज्यादा मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ.
टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, दी छोटा सा हिस्सा जो है बीच में एकदम आजू बाजू कुछ नहीं है, ओके, वो इंडिया है। वो जब जाके एशियन कॉन्टिनेंट में टकराया था, जब when it got banged with the your Asian continent, it created a fold mountain. Fold mountain तो आपने सीखा था लास्ट ईयर में, है ना? तो फोल्ड माउंटेन का एक बेस्ट एग्जांपल आपका ये हिमालयंस है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डार्क आउट शेप करके रखा है। हिमालयन माउंटेन्स बने थे ऐसे, ओके। देन जब ये हिमालयन माउंटेन्स बने तो जाहिर सी बात है कि अगर ये लैंड एरिया हो फोल्ड होके टकराने से इतने ऊपर तक उठे कि उसमें का एक हिस्सा सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट बन गया, 8000 मीटर्स तक अगर कोई चीज उठता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि टकराना कितना जोर से हुआ हो। अगर दो गाड़ियां रोड पे फुल स्पीड में आकर टकरा जाती है तो इट लाइक पूरी कचुम्बर बन जाती है रोड गाड़ी की, है ना? इमेजिन करो यार, जमीन का टुकड़ा जो कि बड़े बड़े रॉक्स हैं वो टकरा के अगर फोल्ड हो सकते हैं तो टकराना कितना जोर से हुआ होगा। एंड दैट क्रिएटेड द माउंटेन कॉल्ड एज हिमालयन माउंटेन्स। अब जहाँ पे माउंटेन्स है तो जाहिर सी बात है वहां पे वैलीज भी होंगे। अब आप ही बोलो, जहाँ पे माउंटेन्स है वहां पे वैलीज हुए हैं, और वैलीज से जब बारिश होती है वहां पे या बर्फ गिरता है, जब बर्फ जब पिघलता है वहां पे, तो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो आपने आई गेस आपके eighth या नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने इरोजन पढ़ा था, उसमें ग्लेशियर का भी ओरिजिन आपने पढ़ा था। सेडिमेंट्स कैरी करते हैं वो भी, विच इज कॉल्ड एज मोरेन्स, राइट? तो वो मोरेन्स जब कैरी होते आया नीचे, जब खाई को भरना शुरू किया, वो जो खाई वाले एरिया था उसको धीरे 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 मिट्टी से, पहाड़ की मिट्टी से क्या हुआ, भरना शुरू हो गया। एंड दैट सॉइल इज कॉल्ड एज एलुवियल सॉइल। जो मिट्टी नदी डिपॉजिट करती है ना, नदियां जो मिट्टी को डिपॉजिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलुवियल सॉइल, और वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। एंड दैट्स द रीजन कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, बिकॉज यस दे लाई इन दी नॉर्थ इंडियन प्लेन अप टू आसाम, वेस्ट बंगाल। तो अगर आपको याद हो यहाँ से हिमालयन माउंटेन्स आपने यहाँ तक देखा भी, यहाँ से गंगा नदी पास होती है, दिस जो मेरा कर्सर लेके जा रहा हूँ मैं, राइट? तो डेफिनेटली यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है, ह्यूज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स which is termed as North Indian Plain. Then coming to the peninsula, this part is called as peninsula. पेनिनसुला बेसिकली जब मैं लोअर स्टैंडर्ड में था तो मुझे लगता था कि वो पेन के जैसा स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इसके लिए उसे पेनिनसुला कहते हैं। या यू कैन से दैट, बट नहीं, कहीं पे थोड़ा सा गलत है। यस, द इन्वर्टेड ट्रायंगल लग रहा है, ये उल्टा ट्रायंगल लग रहा है, सही बात है आपका। बट पेनिनसुला बेसिकली पेन मतलब होता है, पेनिन पेनिन मतलब होता है अ लैंड स्ट्रक्चर विच इज गेटिंग इनटू द वाटर, मतलब ऐसा लैंड स्ट्रक्चर जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। भाई वो चाहे तो सेमी सर्कल क्यों ना हो, लेकिन अगर 3 साइड से घिरा हुआ है पानी से तो इट इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। अब आप बोलोगे सर पेनिनसुला है तो ये साइड का एरिया है जहाँ पे ये हमने छोड़ा हुआ है, वो ऐसे क्यों छोड़ा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि जो पेनिनसुला है ये हार्ड रॉक से बने हैं। अब जितने भी लैंड स्ट्रक्चर्स हैं अपने, अब चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, अर्थ भी पहले हॉट बॉल ऑफ फायर ही था। ये जो लावा, जो वोल्केनिक eruption से लावा निकलता है, बस अर्थ पूरा वैसे ही था। धीरे धीरे ऊपर की जो लेयर है, सरफेस है, वो ठंडा होते गया बिकॉज ऑफ रोटेशन, एंड दैट फॉर्म द हार्ड रॉक्स। आज भी तो कहते हैं लावा अंदर है, सेंटर में, कोर में है अभी भी। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लेट्यू, बेसिकली इसको प्लेट्यू कहते हैं इस पूरे हिस्से को, बिकॉज इट इज सराउंडेड 3 साइड्स बाय वाटर, इट इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। तो मतलब असली इंडिया जो है ना वो इतना तक ही है। अब ये जो है ना ग्रीन वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन एरिया।
जो मैंने अभी छोड़ दिया था। ये कोस्टल प्लेन एरिया कैसे बना हुआ? अभी हमने बात की थी ना, प्लेन एरिया कैसे बनता है? डिपोजिशन से। यस, तो ये कोस्टल एरिया भी डिपोजिशन से बना हुआ है। अब अगर आप इस मैप को जूम करते हो तो यू कैन से फाइन ब्लू लाइंस आपको दिख रही होंगी इस डेक्कन प्लेट्यू या सॉरी प्लेट्यू एरिया के बीच में। नाउ दीज फाइन ब्लू लाइंस आर नथिंग बट द रिवर्स। अब रिवर्स यहाँ से फ्लो होती हैं तो अपने साथ मिट्टी कट डाउन करेगी, मिट्टी कैरी करेगी, बिकॉज इट इज यस वन ऑफ द एजेंट ऑफ इरोजन। तो डिपोजिशन कहाँ होगा? समुद्र के किनारे। एंड दैट फॉर्म द कोस्टल एरिया। जहाँ पे हम रह रहे हैं, मुंबई, मुंबई इज वन ऑफ द कोस्टल एरिया। कितने डिवीजन हो गए अपने? हिमालयंस, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन्स एंड यस द आइलैंड्स। तो हमारे पास दो आइलैंड ग्रुप है। वन इज लक्षद्वीप ऑन द वेस्ट पार्ट विच इज एट अरेबियन सी। ये रहा लक्षद्वीप आपका इस साइड वाला। एंड ये साइड वाला है अंडमान एंड निकोबार विच इज इन बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में जो है वेस्ट पार्ट में जो है आइलैंड उसे हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, और जो बे ऑफ बंगाल यानी ईस्ट की तरफ है उसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो फॉर एक्सप्लेनेशन में अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज स्पीक अप और प्लीज आस्क। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, पेंगिया वगैरह का जो भी है वो बहुत पहले या माइट भी कहीं पे डू यू नो में होगा कहीं पे आई गेस। देन ओके, नाउ let's start with the Himalayas as a first part. Himalayan is the one of the young four mountains in the world. Yes, young इसके लिए because ये लैंड के फॉर्मेशन के साथ साथ नहीं बना, ये लेटर ऑन बना है, ये बाद में बना है, वो टकराने की वजह से बना है, इसीलिए इसे यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। नाउ यू नो व्हाट फोल्ड माउंटेन्स आर बेसिकली। जहाँ पे रॉक्स का कोलिजन होता है, प्रेशर बढ़ता है, वहां पे फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। इट एक्सटेंड्स कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द परमीर knot इन कजाकिस्तान द ईस्ट। यहाँ पे ना अफगानिस्तान है और उसके ऊपर कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान में एक पॉइंट है विच इज कॉल्ड एज परमीर knot। कजाकिस्तान में ईस्ट तक ये फैलता है, जैसे आसाम तक जाता है, उससे भी आगे जाता है। इट्स अ मेजर माउंटेन सिस्टम इन ओशियन कॉन्टिनेंट। यस, एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा माउंटेन स्ट्रक्चर है ये। अब इंडिया की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक? यस, इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जम्मू कश्मीर से शुरू होता है अप टू अरुणाचल प्रदेश तक है ये। ठीक, I will be pausing for 2 to 3 seconds on each slide so then you can take a screenshot of this if you want. Now talking about the Himalayas again, Himalaya is not a single mountain range. एक single mountain range नहीं कि भाई एक बड़ा सा पहाड़ है and that is continuing from the west to east, बल्कि it is divided into several parallel ranges. Parallel line तो आपको पता है ना क्या होती है? A line which do not intersect each other. It's called as parallel line. तो वैसे parallel ranges हैं इनके हिमालयन सिस्टम का। तो सबसे नीचे जो रेंज है, अब यहाँ से अगर आप मुंबई से यहाँ से जा रहे हो तो सबसे पहला जो हिमालयन का जो शुरुआत होता है दैट इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज बेसिकली ये आपके हरियाणा से ही शुरू हो जाता है। ओके, इट इज यंगेस्ट रेंज, सबसे पहला रेंज है, सबसे बाद में फॉर्म किया गया रेंज है बोल सकते हो। द सदर्न मोस्ट पार्ट इन द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। नेक्स्ट टू शिवालिक इज द लेसर हिमालयंस। अभी देखो ये पैरेलल है ना दोनों, दैट व्हाट मीन। अच्छा, इसमें से जो ये नेपाल वाला हिस्सा है ना वो हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है? मतलब यहाँ से यहाँ तक हम काउंट नहीं करने वाले, ये वाला काउंट करेंगे, सिक्किम वाला, नॉट अप टू ईयर, ठीक है? ये वाले व्हाइट वाले पार्ट में जितना आ रहा है वो हमारा हिस्सा नहीं है। तो टॉकिंग अबाउट द लेसर हिमालयंस, लेसर हिमालयंस में आपका मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं, जैसे आपका शिमला आ जाता है, मनाली है, कुल्लू है, एंड मेजर ऑफ जो हम मूवीज में जो देखते हैं ना, बहुत सारी मूवीज है जहाँ पे हिमालयंस में शूट हुई है। इवन द ओल्ड मूवीज देख लो या नई मूवीज देख लो, बेस्ट व्यू टू हिमालयंस इन द मूवी इज ये जवानी है दीवानी करो पिक्चर आपने देखी होगी कभी। तो दे हैव द लेसर हिमालयंस। फिर वो जो क्रिश 3 था वो भी लेसर हिमालयंस में शॉट किया हुआ मूवी है। आई हैव सीन दैट, बट वो जहाँ पे रेखा और ऋतिक रोशन जिस घर में रहते थे ना वो क्रिश 3 में, वो घर भी मैं लाइक जब मनाली गया था तब मैंने देखा था वो। सो बेसिकली लाइक कि लेसर हिमालयंस आर गुड एट टूरिस्ट स्पॉट, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट टू इट इज द ग्रेटर हिमालयंस, जिसको हिमद्री के नाम से भी जाना था। हिमद्री दैट इज हिम के, हिम यानी बर्फ, आइस,
के पहाड़ विच इज कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालयंस। एक मूवी थी अभी लेटेस्टली आई थी अजय देवगन की, शिवाय आई गेस, राइट? तो वो दैट इज ओनली मूवी विच इज शॉट इन ग्रेटर हिमालयंस। यस, वो ग्रेटर हिमालयंस में शूट की गई है। ओके, तो ये 3 रेंजेस आपने देखा। सबसे नीचे है शिवालिक, सेकंड इज लेसर हिमालयंस, देन इज द ग्रेटर हिमालयंस, एंड देन इज द ट्रांस हिमालयंस। कौन सा? ये वाला हिस्सा। ट्रांस हिमालयंस बेसिकली एक डिविजनल डोर कह सकता हूँ मैं उसे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इंडिया के अंदर जब आ जाते हो तो एज यू नो दैट these हिमालयंस ब्लॉक द कोल्ड एयर, कोल्ड ब्रीज वहां से आता है जो बर्फ की पहाड़, बर्फ की जो आंधी आती है उसको रोकता है। यहाँ पे क्लाइमेट अलग है और यहाँ का क्लाइमेट अलग है, तो इट्स अ ट्रांजिशनल जोन कह सकता हूँ मैं इसे ट्रांस हिमालयंस कहते हैं। ट्रांस हिमालयंस में आपका आता है लेह लद्दाख। अगर आपने सुना होगा कहीं पे टूरिस्ट स्पॉट, अगेन वन ऑफ दोस लोग लाइक बोलते हैं ना, people are curious to have a bike ride on the Ladakh road, travel to Ladakh, and when the people return, they attach the flags on their bike, motorcycles, and cars कि भाई मैं लद्दाख जाके आया हूँ। Yes, there are true. It's a very dangerous है थोड़ा सा। It's isolated totally, दूर दूर तक कुछ नहीं मिलेगा आपको अगर कुछ हो गया तो। It is ऐसे पहाड़ है वहां पे ना कि आपको शायद प्लांटेशन भी ना दिखे। It is India's cold desert. Yes, you heard right. राजस्थान का जो ये अपना ये है मरुस्थली जिसको हम कहते हैं, विच इज अ हॉट डेजर्ट। सिमिलरली वी हैव गॉट हिमालय का लद्दाख विच इज कॉल्ड एज कोल्ड डेजर्ट। वहाँ के पहाड़ों पे ये जवानी दीवानी में दोनों दिखाया हुआ है। दे हैव बीन टू ले लद्दाख वाला रोड भी दिखाया हुआ है वहाँ पे गाने में। हैरत वाला जो गाना है I guess उसके अंदर है वो ले लद्दाख वाला रोड। एंड बहुत सारी मूवीज में यूज किया मैंने, नॉट नॉट सो लाइक वो, बट यस वहाँ पे तो जो लेक्स है ना, ठंडी के टाइम पे लेक भी फ्रीज हो जाता है। यू कैन वॉक ऑन द वाटर। उतना उतना ठंडी होती है। शायद पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है इसलिए ठंडी में पीने का पानी ना मिले, इसके लिए उसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। और यही है आपका वो केटू माउंटेन। कहाँ पे बताऊं? एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, केटू माउंटेन यहीं पे है। दीज रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रेस्पेक्टिवली। अभी हमने पढ़ा था शिवालिक यंग है, शिवालिक से बुढ़ा लेसर हिमालयन, लेसर हिमालयन से बुढ़ा ग्रेटर हिमालयन, ग्रेटर हिमालयन से बुढ़ा ट्रांस हिमालयन। So they are young to old respectively. These mountain ranges are also divided from west to east. West से east तक भी ये divided है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। वेस्टर्न हिमालयंस और कश्मीर हिमालयंस, इनको कश्मीर हिमालयंस कहा जाता है या वेस्टर्न हिमालयंस कहा जाता है, इस हिस्से को जो शेड आउट हुआ है। Then comes the central Himalayas or called as कुमाऊन हिमालयंस। इसमें से कुछ हिस्सा अपने यहाँ पे सिक्किम में आता है, बाकी नेपाल में तो हम काउंट नहीं करते उस हिस्सा। देन कम्स द ईस्टर्न हिमालयंस। ये ईस्टर्न हिमालयंस का हिस्सा है, ये आपका एक सेकंड सॉरी ये वाला सिक्किम एंड असम हिमालयंस। ठीक है, ये ईस्टर्न में आता है। सेंट्रल हिमालयंस अपने यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं आता। डन, ओके। नाउ हिमालयंस वाले पार्ट में किसी को डाउट है? आई एम जस्ट गेटिंग बैक बिकॉज़ नॉर्थ इंडियन प्लेन शुरू हो रहा है यहाँ पे। हिमालयंस वाले पार्ट में किसी को डाउट है? आर यू ओके? यस गाइस, एनी डाउट इन हिमालयंस पार्ट? हिमालयन वाले पार्ट में डाउट है किसी को? सॉरी। No, sir. ओके ग्रेट, क्लियरली अंडरस्टूड ना सब लोग? ओके Yes, sir. ओके ग्रेट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको डाउट आना प्लीज पिक अप, बोल देना, बेटर रहेगा। ओके, एज आई सी दैट मेनी पीपल हैव जॉइंड लेटर ऑन, प्लीज ऐसा मत क्या करो लोग, चलो, बिकॉज वंस यू मिस द स्टार्ट ना, फिर आगे वो कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। नाउ लेट्स कम टू द नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन का हिस्सा मैंने किस्सा आपको बता दिया था कैसे हुआ था। ड्यू टू द डिपोजिशन एक्टिविटी डन बाय द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयंस, ये आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन बना है। या इट इज। तो इन्होंने लोकेशन बताया, क्या लोकेशन बताया?
This division lies between the Himalayan mountains in the north and the peninsula in the south. तो आपको पता है पेनिनसुला यहाँ से शुरू हो गया है नीचे से, तो क्या बोला है, ये जो हिस्सा है वो हिमालयन माउंटेन उसके नॉर्थ में है और पेनिनसुला हिस्सा उसके साउथ में है, ये बीच में आ गया सैंडविच बनने। Similarly, it extends from the Rajasthan and Punjab in the west and to Assam in the east. तो कहाँ से कहाँ तक है, राजस्थान पंजाब से शुरू होता है ये वेस्ट पार्ट में एंड कहाँ तक लेके जाता है ये आसाम तक लेके जाता है टू दी ईस्ट। इतना बड़ा एरिया है वो। और पता है आपको इंडिया का सबसे बड़ा एरिया है ये नॉर्थ इंडियन प्लेन। यस, इट इज ऑलमोस्ट अ फ्लैट लो लाइंग एरिया। फ्लैट एरिया है, लो लाइंग एरिया है, बिकॉज डिपोजिशन से बना ना। आखिर यार वैलीज में कितनी मिट्टी रिवर लेके आएगी, कितना डिपोजिशन करेगी, डेफिनेटली वो लो लाइंग एरिया है। The North Indian Plain are divided into two parts. अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। One is the part lying to the east of the Aravallis in the basin of the river Ganga and is therefore known as Ganga Plain. Slopes towards the east. ये वाला हिस्सा अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कलर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट हुआ है। एक सेकंड ना, अच्छे जाता हूँ, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, देखो इसका कलर देखो और इसका कलर देखो, है तो नॉर्थ इंडियन प्लेन का हिस्सा है। आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे छोड़ा था जब मैंने ऊपर से बनाया था, तो ये देखो इसमें नॉर्थ इंडियन प्लेन का हिस्सा इतना है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसका डिवीजन भी ऐसी है। कुछ पार्ट जो रिवर गंगा ने डिपॉजिट करके बनाया है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दी वेस्ट, सॉरी ईस्ट ऑफ अरावली। अभी अरावली पर्वत जो है, अरावली जो माउंटेन है वो राजस्थान के सेंटर में है और अरावली के ईस्ट में यहाँ से गंगा फ्लो होती है। तो गंगा रिवर ने जो डिपोजिशन किया है उससे गंगा प्लेन के नाम से जाना जाएगा। एंड द सेकेंड एरिया, the most of the West Bengal state of the India and Bangladesh together constitute the delta of the Brahmaputra system. Okay. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक इसी साइड में, इस साइड में ही रह रहा हूँ। यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना कि वेस्ट बंगाल, ये जो शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये पूरा वेस्ट बंगाल है। जो अभी लेटेस्ट न्यूज में था कि पीएम मोदी वहां पे गए थे इलेक्शन लड़ने, ममता बनर्जी, यस ममता बनर्जी द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश भी जो नेबरिंग कंट्री हमारा बीच में, जो छोटा सा व्हाइट कलर का इंडिया जैसा दिख रहा है ये वाला, हाँ ये बांग्लादेश है। ठीक है, दिस नेबरिंग कंट्रियां अपना इंडिया पास पार्ट में टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ना, यहाँ से मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक से एक नदी बहती है, मैं आपको बाद में उसका नाम बता दूंगा, सैंगपो नाम है उसका। बीच में उसका नाम बहुत जगह पे चेंज हुआ है। फिर यहाँ से रिवर विहांग बना है, वो सैंगपो पहले यहाँ तक, फिर यहाँ से वही उसका ही रिवर का नाम विहांग बन गया। फिर जब वो रिवर इंडिया में एंटर करती है ना, यहाँ से आसाम से, जब वो रिवर, वो कौन सा है, विहांग रिवर या सैंगपो रिवर जिसको आप कह रहे हो, सैंगपो और विहार, विहांग रिवर जब इंडिया में एंटर करती है तो उसी रिवर का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर होते होते यहाँ से बांग्लादेश के जरिए यहाँ पे आती है, इंडिया को, इंडिया का जो गंगा रिवर उसमें मिल के फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो वहां पे क्रिएट हुआ सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा जिसको हम नॉर्मली नाम से जानते हैं सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा सिस्टम। इसके बारे में बात करूंगा आपसे बाद में। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ सुंदरबन। कि मिनट यार, फोटो था यार, ओरिजिनल फोटो। ऐसा क्या मेरा फोन ना भागता रहता बस। ये देखो ओरिजिनल मैनग्रोव्स जो वहाँ पे सुंदरबन में है, ये आपको यहाँ पे भी यार खाड़ियों में देखने मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो खाड़ी है ना, ये जो एरोली की तरफ जब जाते हो आप, खाड़ी दिखता है आपको जो, वहाँ पे मैनग्रोव्स है विच इज नोन एज सुंदरबन। यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं एरोली वाली बात सुंदरबन की नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ के ब्रह्मपुत्र सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज द इमेज ऑफ द डेल्टा सिस्टम जो इंडिया पे है। ओके, आई शो यू इन द मैप। अगर आप एक मिनट मेरे को टाइम दोगे, मैं आपको मैप पे ओरिजिनल, ये यही फोटो आपको मैप में ओरिजिनल दिखाता हूँ मैं। अब ज्योग्राफी टीचर हूँ यार, इतना से सब रखना ही पड़ेगा मुझे थोड़ा बहुत, है ना। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस। मैं उस दिन स्पेन घूम रहा था तो लास्ट इमेज मुझे स्पेन का ही दिखेगा यहाँ पे। जस्ट as you can see that यहाँ पे हिमालयन रेंजेस
आई डोंट गेट, मैं यहाँ पे पॉइंट कर पाऊंगा कोई चीज। यस आई कैन, अब यहाँ पे देखो लाइट इलेक्ट्रिकल ब्लू कलर दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पिन ड्रॉप किया, दिस इज डेल्टा एरिया। और आपकी बुक में जो फोटो है या जो मैंने आपको अभी जो इमेज दिखाया वो ये है, दिस इज एरिया तो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, फिर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ उसके अंदर उल्टा। पूरे जंगल है, देखना जो मैंने आपको दिखाया ना मैनग्रोव्स, उस टू इट जा सकते हो देखते हैं। पार करूंगा तो वो टाइम लगेगा। तो ये सब वो मैनग्रोव्स है जो आपको मैंने दिखाया फोटो में। ठीक है, एंड दिस वाज अ फोटो, देखो सुंदरबन नेशनल पार्क दिखा आपको, कोलकाता। तो ये है आपको वो सुंदरबन जो मैंने आपको फोटो में दिखाया। सो बैक टू आवर सिलेबस, फोटो। इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। स्क्रीनशॉट विद दिस वन, नॉर्थ इंडियन प्लेन आपको पूरा इसमें कवर हो जाएगा। नॉर्थ इंडियन प्लेन में और भी हिस्सा है, जैसे द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ। अभी ईस्ट का पार्ट का हम बात कर चुके हैं, दैट अरावली के ईस्ट में जो था, जो गंगा प्लेन के नाम से जाना गया, हम उसकी बात कर चुके थे। नाउ टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट। अरावली माउंटेन के अगर वेस्ट पार्ट की बात करें तो डेफिनेटली वो डेजर्ट से ऑक्यूपाई किया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट और द एक सेकंड, वन सेकंड, यहाँ पे बनाने में गलती किया है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट और द मरुस्थली। तो जो राजस्थान का डेजर्ट है दैट इज कॉल्ड एज थार डेजर्ट और मरुस्थली भी कहा जाता है इसे। मरुस्थली की आपको मैं इट इज मोस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड, most of Rajasthan is occupied by this desert. So major part of the Rajasthan is occupied by the Thar desert. Okay, in that particular desert ना you can find shells, जो आपके सी शोर पे जो shells मिलते हैं ना, वो shells आपको यहाँ पे पाए जाएंगे। How come? So there is a old history behind it कि जो पार्ट आज हम डेजर्ट के रूप में देख रहे हैं राजस्थान में, that was being occupied by the sea in the earlier time, olden periods, वो सी में ढका हुआ था और अब आप आज सबको डेजर्ट के रूप में। टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाइज द पंजाब प्लेन। तो ये आपका डेजर्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ठीक इसके ऊपर आता है आपका पंजाब एरिया। दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजेस। नाउ दिल्ली जो है ना आपका, दिल्ली यहाँ पे, तो इसके इस बाजू में ना थोड़े से पहाड़ी एरिया है। तो अरावलीज, दिल्ली और अरावलीज के वेस्ट में ये पूरा आपका डेजर्ट फैला हुआ है। These plains have formed as the result of deposition work by river Satluj and its tributaries. यहाँ पे देख रहे हैं आपको सतलज रिवर बन रहा है ऊपर, देखो ऊपर ग्रीन कलर में, और सॉरी ब्लू कलर में। तो यहाँ पे ना सतलज रिवर है ये वाला, और इसके ट्रिब्यूटरीज है। तो यहाँ का जो पार्ट है वो तो गंगा रिवर ने बनाया, और यहाँ का जो पार्ट है वो किसने डिपोजिशन किया है, सतलज रिवर्स और उसके ब्रांचेस ने, ब्रांचेस मतलब यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, उन्होंने बनाए हैं। द स्लोप्स ऑफ द प्लेन इज टुवर्ड्स द वेस्ट। इसका जो ढलान है, अब देखो रिवर कैसे फ्लो हो रही है, सतलज रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है पंजाब हरियाणा कश्मीर होते हुए, वो इस तरफ की फ्लो करती है और अरेबियन सी में चली जाती है। तो पानी तो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिस तरफ पे लैंड का स्लोप होगा। इस एरिया का जो स्लोप है वो कैसा है, वेस्ट की तरफ है, और गंगा रिवर का स्लोप किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, क्योंकि उसकी जमीन ईस्ट की तरफ स्लोप करती है। ठीक है, because of the soil here is very fertile, agriculture is largely practiced in this region। तो वैसे यहाँ पे सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इसके लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होता है। एनी डाउट इन नॉर्थ इंडियन के लिए? एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, कुछ डाउट का पूछ लेना। आई गेस मैंने आपके टेक्स्ट के सभी लाइंस को कवर किया है। जस्ट गो थ्रू दी पॉइंट इफ यू गॉट योर टेक्स्ट बुक राइट नाउ इन योर हैंड,
Just go through it and let me know once you're done, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं. Done? Any doubt, guys? No, sir. Okay, now next coming across peninsula. As you know that this shaded part in purple is known as peninsula. I'm not talking about the coastal plain area. I'm not talking about the border line. I'm just talking about the internal area of India. I'm talking about this blank. ठीक है? जो border वाला हिस्सा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. The area lying to the south of North Indian Plain and tapering towards the Indian Ocean is called Indian Peninsula. वो एरिया जो इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन के नीचे है, साउथ में है, और वो हिस्सा जो इंडियन ओशन की तरफ बढ़ता जा रहा है उसे हम कहते हैं इंडियन पेनिनसुला. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्यूज एंड हिल्स. ये बहुत सारे प्लेट्यूज से बना हुआ है, ये बहुत सारे हिल्स है उसके अंदर. ओके, फॉर एग्जांपल दीज आर द प्लेट हिल्स. ठीक है, जब मार्क्ड हियर. आगे हम बात करेंगे इसके बारे में. हिल रेंजेस है, बहुत सारे प्लेट्यूज है. The Aravallis in the north are the oldest fold mountains. So there are two fold mountains in India. One is the Himalayas and the second is Aravalli. Aravalli is one of the oldest fold mountain. और Himalayas जो है वो youngest fold mountain है, ध्यान में रखना. It includes series of plateaus bounding the plain. इस plain के plain मतलब कौन सा? North Indian plain. उसके border पे बहुत सारे plateaus है. For example, if you can see a map, you might notice here मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, पागेलखंड प्लेट्यू. ठीक है, ये सब आपको अलग अलग प्लेट्यूज देखने मिलेंगे यहाँ पे. Vindhya and Satpura ranges in the central part and the hilly ranges in the western and eastern Ghats. तो डेल्टा इस पेनिनसुला का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सेंट्रल पार्ट में वी गॉट विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंजेस. इसके बॉर्डर में है ईस्टर्न घाट यहाँ पे ईस्ट की तरफ और वेस्टर्न घाट वेस्ट की तरफ. नाउ वेस्टर्न घाट इज आल्सो नोन एज सह्याद्री माउंटेन. ठीक है, जो हमारे पास जो माउंटेन है ना, हम जो भी माउंटेन यहाँ पे आसपास भी जो देख रहे हो, दैट इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. इसको ऑफशूट्स कहते हैं. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट itself. Would you have taken the screenshots? Got any questions? अभी वो क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इट वाज रिगार्डिंग योर टेक्स्ट बुक. आपका टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है ना, उसके बारे में शूट करना था. तो just go through this peninsula again and let me know once you're done. Then we start with the coastal plain and then we'll be pending with the island area. फटाफट ये देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. चले आगे. Let's move ahead. Okay, now next is the coastal area or the coastal plains. Now the areas across the sea, the border of the sea is nearly called as coastal plain. India is west with a long coastline extending about 7,500 kilometers. That means they are talking from the here till the this part. Okay, this is called as our coastline, which is about 7,500 kilometers. It lies to the western and the eastern part of peninsula. Peninsula के west और peninsula के east part में आता है आपका ये coastal plain area. Its western and eastern coastline shows remarkable dissimilarities. But the अपना जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है और जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है ना, इसमें बहुत डिफरेंस है. एज यू कैन नोटिस एज वेल कि ये जो वेस्टर्न पार्ट का जो कोस्ट लाइन है वो काफी पतला है. देख रहे हो आप, काफी पतला है. वैसे जो ईस्ट पार्ट का जो कोस्ट लाइन है वो काफी थिक है, काफी मोटा है. तो बहुत सारे डिसिमिलैरिटीज हैं ऐसे. वो रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा. वेस्टर्न कोस्ट लाइन में आता है पहले. इसमें थिक एरिया क्यों, थिन एरिया क्यों है, ये काफी ब्रॉड क्यों नहीं है? द वेस्टर्न coast borders by the Arabian Sea.
तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर है वो आपका, यानी वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है वो अरेबियन सी के लाइन में आता है। इट इज बाय एंड लार्ज रॉकी कोस्ट, ये ज्यादातर पत्थरों से घिरा हुआ है। अब आप देखो ना, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी अगर हम समुद्र के किनारे जाते हैं, यहाँ पे द वेस्टर्न पार्ट, बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मुंबई सीएसटी, then towards the Alibag, then towards the Mahalakshmi Temple, Haji Ali, Juhu, Bandra, वली सी फेस, अरे कहीं पे जाओ आपको पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। मरीन ड्राइव यार, पानी जब लो टाइड आता है ना, जब पानी पीछे चला जाता है, कहीं पे पिकनिक में गए हो गए, अगर आप समुद्र के यहाँ पे जल्दी पहुंचते हो मॉर्निंग में, तो यू कैन ऑब्जर्व द लो टाइड। लो टाइड में क्या होता है, पानी बहुत पीछे चले जाता है और सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखता है। यस, बिकॉज द वेस्टर्न पार्ट इज बिट रॉकी टाइप्स, यहाँ पे रॉक्स ज्यादा मिलेंगे आपको। एट प्लेसेस स्पर्स taking off from the western ghats have extended right up to the coast. स्पर्स मतलब एक्सटेंडेड एक्सटेंशन पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट। जैसे अपने यहाँ पे जो माउंटेन है, ये जो आपका नेशनल पार्क का माउंटेन है, चंदीगढ़ नेशनल पार्क का माउंटेन देख लो, या आप वो जो नवी मुंबई की साइड जब आप देखते हो तो वहां पे भी आपको माउंटेन दिखता है। यस, दीज ऑल माउंटेन्स आर द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। और कुछ माउंटेन्स तो स्ट्रेट अवे आपके सी कोस्ट तक चले गए हैं, जैसे वो हैंगिंग गार्डन वाला माउंटेन है। हैव यू बीन टू इट? इस विड्थ इज लेस, इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो विड्थ है वो काफी कम है। क्यों कम है? तो बता रहा हूँ उसका रीजन, कि वेस्टर्न घाट पे, यानी ये जो यहाँ पे ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट है अपना, यहाँ से शुरू होता है अप टू दी नाउ साउथ तक, एकदम नीचे तक। तो इन वेस्टर्न घाट पे शो यू, एक मिनट, ये देखो यहाँ से ये वेस्टर्न घाट पूरा, जब इसके ऊपर बारिश होती है ना इस वेस्टर्न घाट पे, तो पानी दो हिस्से में डिवाइड होता है। एक हिस्सा जो यहाँ पे जाता है और एक हिस्सा ये यहाँ पे जाता है। अब यहाँ वाला जो हिस्सा है वो तो भाई तुरंत जाके समुद्र में मिल जाएगा, और यहाँ वाला हिस्सा तो लंबा जर्नी कवर कर देगा। एग्री? ओके। तो इसके लिए, क्योंकि वेस्ट पार्ट में रिवर्स को, या जो बारिश का पानी है, जब वो कट डाउन करेगा, जब वो इरोजन करेगा, तो उसको इतना ज्यादा जर्नी ट्रैवल करने के लिए नहीं मिलता, ताकि वो सेडिमेंट्स को कैरी करे, ताकि वो मिट्टी को अपने साथ कैरी करे, और उसका डिपोजिशन वहां पे तुरंत हो जाता है। एज अ रीजन यहाँ पे डिपोजिशन कम होता है, और यहाँ का जो विड्थ है कोस्टल प्लेन का वो काफी कम है। As you can see, it is written the same part. Rivers originating from the Western Ghat are short and swift. Short होती है नदियाँ और काफी तेज भी होती हैं। They form estuaries and not deltas. वो estuaries बनाते हैं। estuaries मतलब जो अब जिसको बोलते हैं ना खाड़ी, खाड़ियाँ बनाती हैं। In estuaries, the salty ocean water mix with the fresh water of the river, resulting in the brackish water. अब यहाँ पे देख रहे हो आपको काला जैसा पानी हो गया यहाँ पे, है ना? वो गटर का पानी नहीं है वो। जब आपका ये सॉल्टी वाटर यहाँ का फ्रेश वाटर में मिक्सअप होगा ना, तो ये एरिया का पानी जो है वो ब्रैकिश टर्न हो जाएगा। इसके लिए अपने यहाँ पे खाड़ी का पानी काला दिखता है और हमको लगता है गटर का पानी है। हाँ, बट डू बिलीव मुंबई कर्ज करते भी यार, सब गटर गटर का जो सीवरेज नेटवर्क लाके खाड़ी में छोड़ देते हैं। दैट शुड नॉट बी डन एक्चुअली। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन नाउ। आई होप उसके पहले भी आपने लिया होगा। द रीजन इज कि हर स्टेप पे इमेजेस चेंज हो रहे हैं इसमें, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से है। नाउ कमिंग टू द ईस्टर्न कोस्ट। द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्ट किस तरफ है? बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो ये आपका बे ऑफ बंगाल, और यहाँ का जो कोस्ट एरिया है उसको हम ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन वर्क ऑफ द रिवर। तो ये कैसे बना? ये भी डिपोजिशन वर्क रिवर के है, और रिवर्स ये रहे जो मेजर रिवर्स को मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे। तो ये रिवर्स देख लो उसी वेस्टर्न घाट से फ्लो होते हैं, बट एक लंबी जर्नी कैरी आउट करने के बाद जाके वो बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। अब इस लंबी जर्नी का नतीजा ये है कि इनके पास बहुत ज्यादा मिट्टी होती है कैरी करने के लिए। नाउ द मेजर रिवर्स मैं आपको नाम बता दूं, तो ये जो छोटा वाला रिवर है यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, दिस कॉल्ड महानदी रिवर। ये आपका दिस इज
गोदावरी, दिस इज कृष्णा, और जो एकदम नीचे है दैट इज कावेरी. Many east flowing rivers rising from the Western Ghat and the Eastern Ghat meet these sorry. तो कुछ रिवर्स जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है बट ईस्ट की तरफ आ रही है, और जो ईस्ट घाट से ओरिजिनेट होती है रिवर्स, ये इसी बे ऑफ बंगाल में आके मिलती हैं. Because of the gentle slope of the land, rivers flow at a lower velocity and deposits the sediments brought them the coast. अब क्योंकि ये रिवर्स बहुत स्लो स्पीड में बह रही है, इनके पास इतना ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो ये ला के मिट्टी को यहीं पे किनारे पे जमा करते जाती हैं, एंड दैट फॉर्म्स डेल्टा. नाउ जैसे ये छोटा सा डेल्टा का एग्जांपल है, देखो रिवर ने यहीं पे डिपॉजिट किया मिट्टी, फिर अपने ही मिट्टी को रास्ता काट करके बनाया, दैट फॉर्म्स अ ट्रायंगल व्हिच इज नोन एज डेल्टा. तो ये जो डिपॉजिशन है उसको हम कहते हैं डेल्टा. ठीक है. These, sorry, as a result, deltas are formed along with the coast. देखो ये बहुत सारे डेल्टास के एग्जांपल हैं, मल्टीपल डेल्टास. तो इसी के कारण यहाँ पे यानी ईस्टर्न कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा डेल्टा पाया जाता है, और वेस्टर्न कोस्टल एरिया में डेल्टा नहीं होता, वहां पे एस्चुरीज होता है, क्योंकि पानी का फ्लो का जो फोर्स है वेस्ट की तरफ ज्यादा होता है, और ईस्ट की तरफ जो फ्लो है वो काफी स्लो होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है बट जो स्पीड है वो काफी स्लो होती है, इसके लिए यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होते हैं. So any doubt regarding the eastern and western coastal area, coastal plain? Just go through it once. एक बार देख लो. And I believe you are on the third page of your textbook. Okay, let's start with the island group. So as we have discussed, there are two island groups across the mainland of India, one in Arabian Sea and one in Bay of Bengal. So India has many small and large islands along the coast of the mainland. These are located in the coastal island group. ये coastal island group में count होते हैं. Besides, India has two. ए मैप कहाँ गया मेरा? बड़ा funny thing. मैप ही गायब है. Okay, as you know that one is in the Arabian Sea and second is the Bay of Bengal. The island in the Arabian Sea is known as Lakshadweep Island. Okay, and the one in the Bay of Bengal is called as Nicobar Island, Andaman and Nicobar Island. Okay, just ignore, पता नहीं वो ये क्यों नहीं आ रहा है, और इमेज क्यों नहीं आ रहा था, I don't know about it. Okay, now talking about the Lakshadweep Island. Most of the islands in the Lakshadweep are atoll islands. Now, what is atoll? Atoll is a ring-shaped coral reef or island. An atoll surrounds a body of water called as lagoons. अब यहाँ पे ना अटोल बेसिकली क्या होता है ना, जैसे बोल सकता हूँ कि हाई टाइड में ये जमीन का हिस्सा ज्यादातर राउंड सर्कल शेप में होता है, और हाई टाइड जब होता है ना तो ज्यादातर ये एरिया पानी से डूब जाता है, बोल सकता हूँ भैया, हल्का सा एरिया उसका दिखेगा. ओके, एंड लो टाइड में ये विजिबल होता है, दैट्स कॉल्ड एज अटोल. दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड वेरी नॉट वेरी हाई. बहुत छोटे होते हैं और इतने ज्यादा ऊंचे नहीं होते ये. नाउ आइलैंड ग्रुप इन अंडमान एंड निकोबार. Islands in the Andaman group are mainly volcanic islands. अंडमान में ध्यान से सुनना, अंडमान में ज्यादातर जो आइलैंड है वो वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए वॉल्केनिक आइलैंड्स है वो. दे आर लार्जली विद हिल्स इन द इंटीरियर पार्ट्स, और इनके इंटीरियर पार्ट्स में ज्यादातर हिल्स हैं. अंडमान आइलैंड इंक्लूड्स एन आइलैंड कॉल्ड एज बैरन आइलैंड. अभी देखो अंडमान में ही एक बैरन आइलैंड है, आप अपने मैप में देख सकते हो, वहां पे आपको दिखेगा बैरन आइलैंड. ओके, अंडमान के जस्ट ईस्ट ईस्ट की तरफ ढूंढना, आपको बैरन आइलैंड करके लिखा हुआ मिलेगा. अंडमान आइलैंड इंक्लूड्स एन आइलैंड कॉल्ड एज बैरन आइलैंड व्हिच हैज
the only active volcano in India. Last eruption was in 2017. Yes. ये वहां पे आज भी volcanic eruption होता है और lately like 2017 में volcanic eruption हुआ था इसमें. इसके लिए वहां पे कोई रहता नहीं है. That's the reason it is called as barren island. There are atolls in the Andaman, Nicobar group. Nicobar group में आपको ज़्यादा atoll देखने मिलेंगे. Okay, I'm just stopping over here. ठीक है, तो इंडिया एक बार पूरा रिवाइज कर लो आप लोग. इंडिया एक बार पूरा रिवाइज करो. You can see the atoll here, circular shape. पानी से ढक जाएगा अगर हाई टाइड आया तो. मतलब जमीन नहीं दिखेगी, हार्डली विजिबल होगा. फटाफट पूरा इंडिया रिवाइज करो. गॉट एनी डाउट लेट मी नो. ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है. Do anyone has got any doubt? Sir, what is atolls? टाइम पहले अभी वही फोटो दिखा रहा था ना. अभी जो लास्ट फोटो आपने देखा था पावर पॉइंट पे, राउंड सर्कुलर ग्रीन एरिया था विच वाज सराउंडेड बाय वाटर. छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं बेसिकली, नॉट मच बिग, बहुत छोटे होते हैं. एंड जनरली दे आर सराउंडेड बाय वाटर. आइलैंड है ऑब्वियसली वाटर से सराउंडेड होगा. दे आर नॉट मच बिगर इन साइज एंड दे बताओ था ना, during the high tide they are rarely visible, we can say that. Low tide में they are visible, high tide में visible नहीं होते. Okay, all done. Okay, listen carefully now. All listen carefully. Right now there are if 13 people in. Some people have joined on the right time. Some people joined later on. But I request all during the next session, during the next lecture, please be on time. The reason is I will be continuing this chapter ahead. तो अगर आपका स्टार्टिंग का कुछ अगर मिस हो जाएगा ना तो वो फिर नहीं समझेगा. We have completed Indian part today. इंडिया का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया फिजियोग्राफी में. Then we will starting with the Brazil physiography, then the river systems of both countries. So once you get late, you might miss some of that part. So there is a humble request from my side. Please be on time in the next lecture, or else I need to find some solutions that I will be denying entry after a particular time. So you cannot join me then. जो लोग टाइम पे आते हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा फिर. Clear? Okay. Take care and enjoy your Sunday. Revise this India part before entering to the next lecture. Bye and take care.